चार गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए ने। गैंगस्टर रविंदर बिंदा गैंग के मैंबर दसे जा रहे हैं। पटियाला पुलिस ने गिरफ्तारी की है। दो ਵੱਖ-ਵੱਖ मामलों के चार गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए ने। गैंगस्टर रविंदर बिंदा ते उसका साथी काबू किया गया है। 32 बोर के चार पिस्टल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 32 बोर के चार पिस्टल ਤੇ 20 कारतूस बरामद ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। गैंगस्टर SK खरोड़ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। 315 बोर के 2 पिस्टल ਅਤੇ 6 कारतूस ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ बरामद किए गए ने। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन ते इस वेले जुड़ रहे हैं। मनोज की कुछ जानकारी मिल पा रही है गिरफ्तारियों के बारे? जी बिल्कुल गगन जी, मैं दस रहा कि दो वड्डियां जिहड़ियां केस ने के हल कीते ने पटियाला पुलिस ने, जिहदे विच 6 पिस्टलां समेत 4 जिहड़े दोषी नूं गिरफ्तार कीते गए ने। ते उहदे विच एक वड्डा नाम हैगा रविंदर सिंह उर्फ बिंदा गुजर दा, जिहड़ा कि कई मामलों के विच जिहड़ी गैंगस्टरां दी गैंगवार होई पटियाला दे विच, उहदे विच चाहे शमशेर सिंह शेरा या सरपंच रवि जिहड़ा कारादार सीगा ओहदी कतल कर दित्ता सी, ओहदे विच शामिल सी। ते SK खरौड़ हैगा जिहड़ा ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 4 ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਦ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਥਨ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਉਰਫ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 315 ਬੋਰ ਦੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਤੇ 6 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, SSP ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੰਦਾ ਗੁਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਗੁਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦਾ ਗੁਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। पटियाला दे विच जिस तरीके गैंगस्टर बिंदा गुजर रविंदर उर्फ बिंदा गुजर की गिरफ्तारी हुई और उसके नाल ही 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ होर मामले के भी गिरफ्तारियां हुई ने, असला बरामद किया गया और बकायदा पटियाला के SSP ने जिहड़ा इस पूरे मामले की जानकारी दी है और साफ कर दिता है कि गैंगस्टर या तो पटियाले दी हदां तो बाहर हो जाण, शरारती अंसर जिहड़े हैगे बदमाश जिहड़े हैगे या तो पटियाले की हदां तो बाहर हो जाण, नहीं तो कार्रवाई लई तैयार रहण। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦਾ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਗੁੰਦਰ ਪਸਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੰਦਾ ਗੁੱਜਰ ਜੁਲਕਾਂ ਦੇ ਛਪੜਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ SK ਖਰੋੜ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 32 ਬੋਰ ਦੇ 4 ਪਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਤੇ 20 ਰਾਉਂਡਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੌਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 6 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ हमला करन आए गैंगस्टर ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਏ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ एक कमरे के पिछे एक दरवाजे के पिछे अपने आप को लुकाउण की कोशिश की सी, पर पुलिस मुलाजम पूरी तैयारी के नाल पहुंचा सी। एक हत्थे विच पिस्टल सी, दूजे विच राइफल सीगी ते उस तो बाद उसने काबू कर लिया गैंगस्टर नूं जिहड़ा लुकण की कोशिश कर रहा सी। और तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा फड़िया गया गैंगस्टर है वो
तिहाड़ जेल तो छुट के आया सी। पिंड महमे चक दा मामला बटाला दे पिस्तौल सने कारतूस बरामद किए गए ने। हफ्ता पहला ही एक गैंगस्टर जिसका नाम सुखबीर दस्सिया जा रहा सी, वो जमानत ते आया सी तिहाड़ जेल तो बाहर। ते तिहाड़ जेल तो जमानत ते बाहर आए गैंगस्टर ने एक गोली गैंग दा मैंबर सीगा, दोवें गोली गैंग दे मैंबर ने। ते गैंगस्टर गोली इस वेले अमृतसर जेल दे विच बंद है। इन्हां दोवां ने पिंड महमे चक दे एक घर दे उत्ते एक परिवार दे उत्ते हमला करने की कोशिश की। परिवार घर दे अंदर वड़ गया, उसने पुलिस नूं फोन किया और पुलिस ने आके कार्रवाई शुरू की और उस तो बाद इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। इन्हां दा बाइक जिहड़ा सीगा इन्हां कोलों भी बरामद किया, इन्हां कोलों असला भी बरामद होया है और इन्हां दे बारे पुलिस ने बकायदा हुण जानकारी दी है। किस तरीके गिरफ्तार किया गया उसका लाइव वीडियो सामने आया, जिहड़ा मोबाइल दे विच रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। गुआंढियां ने रिकॉर्ड किया किस तरीके छत ते चढ़ गया सीगा गैंगस्टर और पुलिस मुलाजम उत्थे पहुंचदा है, उसनूं अरेस्ट करदा है, उसनूं जाके गिरफ्तार करदा है। हथियारां दे नाल लैस पुलिस मुलाजम पहुंच गया सीगा घर दी छत दे उत्ते जिथे लुकिया होया सी गैंगस्टर, उत्थों इसनूं काबू कर लिया गया। राज जगह का काबू किया महमे चक्का ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ गोलियां मारन गए हैं मुंडे दे ਕਿਹੜੇ ਹੋ जशन दे ਕਿਉਂ ਮਰਨਗੇ ਸੀ बहनों तंग करदा ही ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ सत्त किस दर्ज ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ डेरे हाँ जी ते दिल्ली ਪਿੰਡ ਰਾਜੇ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 6 ਰੌਂਦ ਜਿੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਥਾਮ ਕੇ ਰੱਖਣਾ क्योंकि एक बार फिर एक लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिते गए। एक बार फिर एक लाश ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। श्रद्धा कतलकांड वगा एक होर कतलकांड, लाश के कई टुकड़े करके फ्रिज दे विच रखे। दिल्ली पुलिस ने पत्नी ते बेटे नूं गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले विच गला वड के लाश दे 10 टुकड़े किए गए। नजायज संबंधां दे शक दे विच इस वारदात नूं अंजाम दिता। श्रद्धा कतलकांड तुहानूं याद होएगा, दिल्ली दा श्रद्धा कतलकांड। श्रद्धा नां दी कुड़ी जिहड़ी सीगी उस ते टुकड़े टुकड़े किए सीगे। आफ्ताब नां दे उसते सो कोल्ड प्रेमी ने, सो कोल्ड लवर ने, जिहड़ा अपने आप को श्रद्धा दा प्रेमी दसदा सी, जिहड़ा दावा करदा सी कि वह श्रद्धा नूं प्यार करदा, उसने श्रद्धा नूं मारिया, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए ते उसनूं वख-वख थावां ते सुट्टिया। ते इस सब दे विचाले जदों ये सारी जांच चल रही सी तां कुछ होर टुकड़े, मनुखी शरीर के टुकड़े क्राइम ब्रांच नूं बरामद हुंदे ने और क्राइम ब्रांच जदों जांच करदी है तां फिर मामला जिहड़ा है दिल्ली के पांडव नगर का खुलदा है, जिथे शख्स का नाम सी अंजन दास, उसकी पत्नी का नाम सी पूनम, बेटे का नाम सी दीपक ते पत्नी ते बेटे नूं पुलिस ने हुण गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि वीडियो भी सामने आ गया सी किस तरीके दोवां ने कतल करने तो बाद लाश के टुकड़े करके लाश नूं टिकाणे लाया, किस तरीके वख-वख थावां ते जिहड़ा हैगा इस लाश नूं सुट्टिया गया है और उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई सी। बदबू हटाउण दे लई, बदबू नूं लुकाउण दे लई घर दे विच पेंट किया गया। नजायज संबंधां दे शक दे विच वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। मृतक दे शरीर दे कई हिस्से हले भी गायब ने। 5-6 महीने तो यह शख्स अंजन दास गायब सी। सुनसान इलाके विच टुकड़े सुट्टण जांदे सी दोवें, अंजन दास दी पत्नी ते उसका बेटा। अंजन दास दी दूजी पत्नी सी पूनम। पूनम ने उसके बेटे दे नाल रल के अंजन दास दा कतल कर दिता और सिर्फ कतल नहीं किया, जिस तरीके श्रद्धा कतल केस दे विच फैक्ट की सीगा, गला कुट के मारा और लाश के 35 टुकड़े किए गए। अंजन दास के कतल केस दे विच गला वड के मारिया अंजन दास नूं और उस तो बाद 10 टुकड़े किए गए अंजन दास दी लाश दे, डेड बॉडी दे। ते इस पूरे मामले विच मां बेटा दोवें जांदे सीगे लाश के टुकड़े सुट्टण लई, सीसीटीवी दे विच कैद हो गए। इतनी घमंडन औरत थी ना, ये बिल्कुल बात नहीं करती थी, ना किसी का दुख दर्द। मेरा आदमी रातों में 2-2 बजे तकलीफ हो जाती थी, चौथा अटैक पड़ा, लेकिन कभी इसने ये नहीं कहा कि अंकल को क्या हो, तो मैं कैसे आदमी से क्या बात करूं।
तो कितने लोग रहते थे यहाँ पे? इनकी बेटी है 2 और ये एक बेटा है दीपक। तो बेटा भी यही रहता था? नहीं, बेटा यही पहले यहीं रहता था। अच्छा, आप पता नहीं कहाँ रहता है। सक्रिय रास्ते हैं, पूरी तरीके से कोई सीढ़ियां नहीं हैं बात सक्रिय, करता। कोई बात नहीं करता था। तस्वीरों के जरिए हम अकेली दिखाना रहती हूँ चाहेंगे। मैं, सब बहुत घबराती हूँ। ये डर लगता था कि कहीं कोई मुझे कुछ कर ना वो दे। आप देख तो मैं सकते हैं, दरवाजा बंद कर लेती हूँ, ये फिर इसी में निकाल करके अंजनदास नेचर तो हमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर 2-3 बार वहाँ पार्क के चौक पे लड़ाई होते हुए गौतम मियाँ बीवी की देखी है। बच्चे मैंने 2 ही देखे थे, एक लड़की एक लड़का, जिनकी शादी हो रखी है। हम लोग कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग अपने घर से मतलब रखते हैं बाकी, और हमें इनसे क्या लेना, ऊपर रहते हैं वो, ना हमारी उनके जान पहचान ना कुछ, क्योंकि इनके जानने वाले आते भी होंगे तो हमें कुछ नहीं पता, हम तो उधर कोने पे बाद लगातार 3 दिन तक, तो शुरू में दो पैर, 2 थाई, फिर एक स्कल मिला एक दिन, उसके बाद एक बाजू का हिस्सा मिला। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहाँ मैदान से, और वहाँ एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की UID बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ACP उमेश बर्दवाल और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी, और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है, और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें, एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे, वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे, 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे, और अभी भी कुछ कमाई के साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे। और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और राहुल, इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। सो किस तरीके इस पूरे कत्ल ਨੂੰ अंजाम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ।